वेलकम। जेई नीट लेक्चर नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट्स स्टार्ट हो रहा है। एंड लास्ट लेक्चर में हमने बायो-सवार्ट्स लॉ किया। वी डिड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर, फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, magnetic field due to a ring and many turns and stuff like that. Today we are looking at solenoid, toroid, and we're going to look at Lorentz force, also cyclotron. So first thing is Ampere circuital law, उसके बगैर तो होना जाना नहीं। So Ampere circuital law में I got three wires as you can see which are carrying currents I1, I2 and I3. If you might have noticed I1 going upwards, I3 going upwards, I2 going downwards. Now what did Ampere say? He said that the line integral B bar dot dl bar over the whole loop. Now this loop is called the Amperean loop. Compare it with the Gaussian closed surface, that was area. This is a loop. Integral B bar dot dl bar is mu naught sigma I. So the line integral of magnetic field over a closed loop is the product of mu naught and sigma I. Here sigma I is the sum of currents enclosed by the loop. Fair enough. Now the most important thing, अब ये सिग्मा आई निकाले कैसे? हाउ डू वी फाइंड आउट सिग्मा आई? उसके लिए साइन कन्वेंशन भी तो जरूरी है। तो साइन कन्वेंशन इस प्रकार का है, लेट अस डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ आवर मोशन थ्रू द लूप बी लाइक दिस। ये मेरी तरफ है, ये पीछे की तरफ है। सो वी आर गोइंग लाइक दिस, ऑलराइट। यहां से आपकी तरफ से पीछे जाते हुए वी आर गोइंग लाइक दिस, और बीच में ये तीन वायर है। तो टेक योर राइट हैंड, मूव योर फिंगर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लूप। थंब दिखाएगा कि कौन से करंट को पॉजिटिव लिया जाए। सो इफ यू आर गोइंग लाइक दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ योर फिंगर्स एंड द अपवर्ड डायरेक्शन वुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो पॉजिटिव करंट। सो हियर ऊपर जाने वाले करंट कौन से? I1 and I3. So I1 and I3 will be taken positive, while I2 which is going down shall be taken negative. So here I1 and I3 are taken positive and I2 is taken negative. As a result, sigma I becomes I1 plus I3 minus I2. Did I tell you that this loop, this imaginary loop is called the Amperean loop? और इसी टाइप से हमने, मैं एक टिप दे रहा हूं आपको कि सपोज तुम्हारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग पतला वायर था, तो उसके आर डिस्टेंस या वाई डिस्टेंस पे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई वाई था। बट व्हाट इफ you had a thick wire and this thick wire had radius a, and supposing you had to find the magnetic field at this point P, which was at a distance chota r from the axis of the wire, we took an imaginary Amperean loop, we moved through it, and finally we found that inside the wire the magnetic field B is mu naught I by 2 pi a square the whole into r, where r was the distance of the point from the axis. This is your axis. So inside the wire B is inverse, is directly proportional to r. At the center magnetic field would be 0. On the surface, on the wire, r will be equal to a. As a result, you put a here. So be on the wire, it's not beyond, it's beyond. It's mu naught I by 2 pi a. And away from the wire, outside the wire, mu naught I by 2 pi y. So this is how the entire thing moves. This is for thick wire. इसी को यूज करेंगे और बात करेंगे सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड का आइडिया बेसिकली बहुत सारी रिंग्स के आइडिया से आता है। सो इफ यू हैव अ नंबर ऑफ रिंग्स, सो द टॉपिक्स नेम इज सोलेनॉइड। एम्पियर सर्किटल लॉ से ही देखेंगे उसको, और हमको और कुछ करना ही है। इफ यू हैव दीज टू रिंग्स, लेट अस से, and both are carrying currents in the same direction, then you will observe that in the center, within the rings, the magnetic field will be strong and uniform. Also, जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जाओगे, magnetic field curve होता जाएगा।
because I'm sure you remember magnetic field lines, they are forming closed loops. तो ये वाला कहीं नीचे से यहाँ से टर्न मारता है, ये वाला कहीं यहाँ से टर्न मारता है. And if I were to do it for individual rings, it would be something like this. You've seen this all before, nothing is new. But मैं जो दिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि outside the rings you can see कि एक magnetic field line नीचे जा रही है, एक ऊपर जा रही है. As a result, they would cancel each other. These two would cancel. जबकि ये बीच में जो सारी है वो सारी add हो रही है. So the most important idea for a solenoid is that within the solenoid, the magnetic field is strong and uniform, whereas outside the solenoid, the magnetic field is nearly zero. It's negligible. You can neglect it. So इसी तरह से बना है हमारा solenoid. तो हम इतनी सारी रिंग तो ले नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, एक hollow pipe like structure लेते हैं and we wind it with the number of turns of the wire, each turn behaving as one single ring. So ये बहुत सारे turns of wire है, each behaving as one single ring and current carry कर रहा है. एंड इसमें भी रिंग का ही आइडिया लेके मैं करंट अगर यों जा रहा है आपकी तरफ से मेरी तरफ, तो मैं यों उंगलियां घुमाता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगा. सो लेट मी शो यू दैट मैग्नेटिक फील्ड, इट इज इन दिस डायरेक्शन, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द रीजन विद इन द सोलेनॉइड, जीरो आउटसाइड द सोलेनॉइड. अब हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड या वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड देखा था, बट व्हाट इफ द सोलेनॉइड इज नॉट लॉन्ग? What if the solenoid is finite? Sir, what does that mean, finite solenoid? कि जिसका लेंथ और उसका डायामीटर कंपेरेबल है. तो ऐसे सोलेनॉइड का क्या? So very long solenoid is a special case. But what if we have such a type of solenoid? लेंथ बराबर है, डायामीटर भी कंपेरेबल है. तो सपोज ये पॉइंट P है इनसाइड द सोलेनॉइड. इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना? We are not going into derivations, we are straight away moving into formula. तो जैसा वो वायर के लिए किया था कुछ ऐसा ही, बस फर्क इतना कि यहाँ पे अल्फा 1 और अल्फा 2 है और इस तरफ ये वाला है phi 1 and phi 2. So what is the magnetic field? Suppose I have consider a solenoid of n turns per unit length. Consider a solenoid having n turns per unit length. ये हमारे solenoid की length L है श्रीमान, and let us say तुमको radius चाहिए तो radius is R. Okay, then what would be the magnetic field at point P? Magnetic field at point P inside the solenoid, two lovely equations, जैसे वायर में थे वैसे ही मस्त एकदम, and current passing is I. So B is mu naught छोटा ni by 2 sin alpha 1 plus sin alpha 2. अल्फा 1 और अल्फा 2 को इस्तेमाल कर लिए, और अगर तुमको phi 1 और phi 2 इस्तेमाल करना है, इजी, mu naught छोटा ni by 2 cos phi 1 plus cos phi 2. Wow, lovely equation. Okay, तो ये दो equations है for a finite solenoid. And if we have a very long solenoid, for a long solenoid, logic वही बैठता है. long solenoid में ये बड़ा होता जाता है, तो do you agree alpha 1 और alpha 2 भी बढ़ते जाते हैं? So alpha 1 and alpha 2 both become nearly 90. So B is mu naught छोटा ni by 2 sin 90 plus sin 90. आपको समझ में आया कैसा है? जैसे जैसे लंबा होता जाएगा ये एंगल और बढ़ता जाएगा और बढ़ते 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 90 हो जाएगा. Sin 90 is 1, तो 1 plus 1 is 2. 2 goes away, and as a result you get the most celebrated equation for the solenoid, mu naught छोटा ni. This is the equation that we used in totality. And here, well, it is important to write here छोटा n is बड़ा N by L, that is number of turns per unit length. Okay, देख लीजिए इसको.
अब अगर मैं सोलेनॉइड को, सोलेनॉइड लंबा ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा पाइप जैसा, अगर सोलेनॉइड के दोनों एंड्स मिला लिए, डू यू अग्री, आई विल हैव अ टोरॉइड, यू नो, डोनट शेप स्ट्रक्चर. इस डोनट शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टोरॉइड. सो लेट्स लुक एट द टोरॉइड फर्स्ट. डोनट शेप, यू नो, इंडिया में मेदू वड़ा ज्यादा चलता है, डोनट तो चलता नहीं है. डोनट वेस्टर्न कंट्रीज में चलता है, हमको मेदू वड़ा ज्यादा पसंद है, तो वी कॉल इट अ मेदू वड़ा टाइप स्ट्रक्चर, और नाम है उसका टोरॉइड. तो टोरॉइड कुछ इस प्रकार, नियरली रिजेंबल्स मेदू वड़ा, नो प्रॉब्लम. एंड उसके ऊपर वायर बाउंड किया सब, तो वायर कुछ इस तरह बाउंड हुआ है. So I tend to call it medu vada with spaghetti, you know, noodles, fusion food sorts. I love medu vada, I love noodles also. So current pass हो रहा है, वही solenoid का ही फंडा है. Current I passing through each turn, there are n turns. And सबसे मजे की बात यह है, मैग्नेटिक फील्ड न यहाँ है न आउटसाइड है. Magnetic field is inside the solenoid, you know, in the region inside the solenoid. So magnetic field is present only in the interior of the toroid. You know, I call it the medu of the vada. You know, medu vada को तोड़ोगे white white निकलेगा, वो medu of the vada है, वहां पे magnetic field है और कहीं नहीं. तो सपोज ये मैंने सेंटर लिया है वो, एंड ये है पॉइंट P जो है डिस्टेंस R पे, तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, अंदर ही होना चाहिए था. सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P B इज, बहुत लवली इक्वेशन, म्यू नॉट NI बाय 2 पाई R. डेरिवेशन हमने बोर्ड के लेक्चर में किया था, हमें यहाँ पे डेरिवेशन का दरकार नहीं है. Here n is the total number of turns and R is the average radius. So here R is the average radius या mean radius. तो suppose आपको interior inner radius दिया है R1, outer radius दिया है R2. If inner radius is R1 and outer radius is R2, supposing in some numericals they might give you, तो फिर mean radius क्या होगा, आपको यूज करना है, तो R is equal to R1 plus R2 by 2. So don't forget to do that. And if you want to denote n by 2 pi R as छोटा n, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि B is mu naught छोटा Ni. एकदम सोलेनॉइड जैसा ही फॉर्मूला, ओरिजिनलिटी में तो सोलेनॉइड ही है और कुछ तो है ही नहीं, वेयर छोटा n is बड़ा n by 2 pi R. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये जो सरकमफ्रेंस गया इसका लेंथ कितना होगा, 2 पाई R. सो n बाय 2 पाई R. दिस इज टोरॉइड. टोरॉइड की फील्ड लाइंस ऐसी गोल होती है अंदर ही, ऐसे जुप जुप, क्योंकि सोलेनॉइड की याद है ऐसी सीधी थी, तो अगर तुम घुमा दोगे तो गोल हो जाएगी ना, तो इसी तरह गोल है सोलेनॉइड की फील्ड लाइंस, टोरॉइड की फील्ड लाइंस, सॉरी. देन लेट्स गो टू लॉरेंट्ज फोर्स. Lorentz force gives us the equation for the magnetic force on a charge which is moving in a magnetic field. For example, टॉपिक का नाम लॉरेंट्ज फोर्स ही देते हैं, पर मैग्नेटिक फोर्स को डिस्कस करना है सर्वप्रथम. एक काम करें, लॉरेंट्ज फोर्स लेने से पहले एक आध सैंपल प्रॉब्लम सॉलिनॉइड का ले लेते, अच्छा रहेगा यार, है ना. आई थिंक सैंपल प्रॉब्लम नंबर 8 की दरकार है हमको. यस, सैंपल प्रॉब्लम 8. मैं जो प्रॉब्लम्स ले रहा हूं, आई एम टेकिंग देम फ्रॉम द अरिहंत मास्टर रिसोर्स बुक इन फिजिक्स बाय द ग्रेट डीबी सिंह. तो सैंपल प्रॉब्लम 8 कहता क्या है, पहले डेटा लिख लेता हूं. सोलेनॉइड है, सोले, और लेंथ कितनी है 0.4 मीटर एंड डायामीटर 0.6, तो रेडियस 0.3 मीटर. Consists of a single layer of 1000 turns, so n is 1000 turns,
and find wire carrying a current of 5 milliamp. So 5 into 10 raised to minus 3 amp. Calculate the magnetic field, one on the axis in the middle point, and second at the end of the solenoid. Okay, तो आओ चेक करते हैं किस तरह वर्कआउट होगा. तो सबसे पहले सोलेनॉइड का डायग्राम आवश्यक है भाई, और इस बार बहुत लॉन्ग सोलेनॉइड नहीं है. मैं ये बना देता हूं सोलेनॉइड, ये एक्सिस है उसकी और ये मिड पॉइंट. तो हमको सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देखना है. दिस इज, आई एम श्योर यू रिमेंबर, अल्फा 1, दिस इज अल्फा 2. ये लेंथ है पूरी 0.4 मीटर. तो भाई इतना कितना होगा 0.2, और ये जो आपका रेडियस है कितना है, रेडियस 0.3. ओके, तो सबसे पहले हमको एट पॉइंट P फाइंड करना. ये फर्स्ट, टू फाइंड मैग फील्ड एट पॉइंट P. भाई पॉइंट P एग्जैक्टली सेंटर में. सो डू यू अग्री अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों एंगल्स की वैल्यू सेम होगी. मैं यूज करने जा रहा हूं इक्वेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड B इज म्यू नॉट छोटा ni बाय 2 साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2. अब रिक्वायरमेंट में साइन अल्फा 1 और साइन अल्फा 2 दोनों सेम ही है, तो मुझे पहले वो फाइंड करने पड़ेंगे. छोटा n विल बी बड़ा n बाय l, जो मैं एंड में रखूंगा. हियर साइन अल्फा 1 और साइन अल्फा 2 दोनों सेम है. एंड व्हाट इज साइन समथिंग, इजंट इट ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज. तो ऑपोजिट कितना है, अल्फा 1 पकड़ो, ऑपोजिट अल्फा 1 का ऑपोजिट है 0.2. एंड व्हाट विल बी हाइपोटेन्यूज, सर हाइपोटेन्यूज मालूम नहीं है, लेट्स कॉल दिस A एंड लेट्स कॉल दिस B. सो हाइपोटेन्यूज इज AP. तो कुछ भी करने से पहले AP फाइंड करना जरूरी है सर. ओके, AP हाइपोटेन्यूज है, इजंट इट रूट ऑफ पॉइंट, ये रेडियस कितना है 0.3, तो 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर. 0.2 का स्क्वायर, ये 0.4 का था, 0.2 है ना इतना. तो आपको नाम देना है, इसको AO कर लो. सो AO का स्क्वायर और OP का स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट इट इज. दिस इज 0.09 and this is 0.04 which becomes 0.13. तो रूट ऑफ 0.13, ये रूट के धंधे बाद में देखेंगे, अभी कोई दरकार नहीं है. सो साइन अल्फा 1 और साइन अल्फा 2 दोनों, isn't it AO by AP, and AO is 0.2 upon root of 0.13. okay, अब now let's put formula. So B is म्यू नॉट बड़ा n बाय l इंटू y, एंड साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 दोनों सेम है, तो ट्वाइस साइन अल्फा 1. ओके, आई थिंक नाउ वी आर इनटू पुटिंग द फॉर्मूला एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज. म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 to minus 7, number of turns 1000 and length 0.4. I might as well write it as 4 into 10 to minus 1. I tend to put it in this way. Current I already in normal terms, 5 into 10 to minus 3, and 2. What is sin alpha 1? 0.2, that's 2 into 10 raised to minus 1 over root of, ये 0.13 को root of 13 into 10 raised to minus 2 लिख दूं. I'm sure आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. Look at the calculation. पहले धीरे धीरे उड़ाते हैं. ये पाई आया मेरे पास -7, अच्छा +3 - 3 goes away, -7 + 1 is -6, एंड ये 4 अगेन यहाँ पे है, एंड ये 10 to minus 2 रूट में से बाहर आएगा, 10 to minus 1 10 to minus 1 10 to minus 1 कट जाएगा. एंड अब रूट ऑफ 13 लेने का वक्त आ गया. रूट ऑफ 13 कितना होगा, 3.5 का स्क्वायर कितना होता है, 3.5 3.5 आएगा 25 15 17 5 15 10 12.25. 3.6 ले लेते हैं टू बी सेफ. 3.6 करीबन. ऑलराइट, आई एम श्योर यू कैन चेक इट आउट एंड फाइंड आउट द आंसर. ये 20 5 4s are 20 एंड पाई 3.14 by 3.6.
Now 20 into 3.14 is 62.8. So 62.8 divided by 3.6 into 10 is to minus 6. अच्छा 62.8 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता तो कितना आता करीबन कुछ रह तो नहीं गया ना लेने का 5 लिया है ये लिया है 4 लिया है 2 2 जा 4 ये आ गया 5 4 जा 20 बरोबर है एंड 20 into 3.14 is 62.8 62.8 by 3.6 बाकी कुछ तो नीचे नहीं बचा ना लेंथ लिया लेंथ 0.4 लिया है करंट लिया है 2 नाइन अल्फा सब लिया सो करीबन 18 के आसपास या 15 के आसपास आना चाहिए अगर सही बचे तो उन्होंने कुछ और तो लिया नहीं है सो रेडियस हमने रेडियस बरोबर कंसीडर किया है ओके सो 62.8 डिवाइड बाय 3.6 मुझे कुछ और आंसर आ रहा है कहीं हमने कोई डेटा लेने में तो कुछ गलती नहीं करी लेट अस सी सोलेनॉइड लेंथ 0.4 मीटर तो ये 0.2 हो गया एंड डायमीटर 0.6 तो ये 0.3 हो गया करंट 5 into 10⁻³ तो म्यू नॉट छोटा ni/2 ये 2 कहाँ गया अरे 2 कहाँ गया माल को देखा इधर से इधर लाने में 2 भूल जाते हैं 2 2 2 अरे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी होती रहती है क्या बात है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लोचा ये कि मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ लिख भी रहा हूँ तो ये लोचा होता है बट व्हेन यू आर डूइंग इट बी केयरफुल यहाँ से जो उठाना है वो वहां उठा लेना बरोबर से नहीं तो दंगा हो जाएगा तो करीबन 7 9 63 मतलब करीबन 8.7 या 8.8 के आंसर पास आना चाहिए आई थिंक सो मुझे उन्होंने 8.7 दिया हुआ है वेरी नाइस 8.7 into 10⁻⁻6 टेस्ला इसलिए मैं हमेशा चेक कर लेता हूँ कुछ रह तो नहीं गया कुछ रह तो नहीं गया पता चलता है कुछ रह गया तो अपने लगा सकते हैं हैपेंस विद एवरीवन अच्छा ये तो था एट द सेंटर अब एट द एंड ये बहुत जरूरी होगा ध्यान से देखिएगा एट द एंड वाला क्योंकि एट द एंड में हम जिस तरह लेंगे एट द एंड सो सोलेनॉइड कुछ ऐसा और ये एंड है नाउ पॉइंट पी इज हियर सो दिस द एंड ऑफ द सोलेनॉइड तो अगर आप ध्यान से देखें ये पॉइंट पी इस लाइन बी के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई 0 0 0 0 बराबर तो एंड अब ये कितना हो जाएगा ये एपी ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा 2 या अल्फा 1 पकड़ो एंड अल्फा 2 तो 0 है हियर अल्फा 2 इज 0 डिग्री बराबर है हाँ अगर ये भी इंफिनिटी पे होता तो अल्फा 2 कुछ होता या भी आगे होता तो अल्फा 2 कुछ होता बट यहां अल्फा 2 0 है एंड साइन अल्फा 1 इज व्हाट ए बी बाई ए पी ए बी कितना है 0.4 ये कितना अपने को पता है ये 0.3 है तो अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा 0.5 करने की भी जरूरत नहीं सो साइन अल्फा 1 इज ए बी बाई ए पी which is 0.4 by 0.5 and now magnetic field by B is mu naught छोटा ni by 2 sin alpha 1 plus sin alpha 2 तो mu naught ये n by l के चक्कर में हुआ था वो sin alpha 1 कितना भाई 0.4 by 0.5 आपको दिक्कत ना हो तो 4 by 5 ही लिख दूंगा अभी प्लस अल्फा 2 हाउ मच इज sin 0 0 तो ये वाला कैलकुलेशन काफी आसान रहा पर अगर अल्फा 2 को गलती से कुछ और इमेजिन कर लिए तो लेने के देने पड़ जाएंगे महाराज सो अब शांति से सब्स्टिट्यूशन 4 pi into 10⁻⁻⁷ नंबर ऑफ टर्न्स 10⁻³ करंट 5 into 10⁻³ नीचे 2 नहीं भूलना इंटू लेंथ कितना है 0.4 मतलब 4 into 10⁻⁻1 इंटू 4 by 5 वो 4 4 कटा 5 5 कटा ये 10⁻³ प्लस 3 तो कट ही गया था 4 pi by 2 is 2 pi -7 plus 1 -6 2 pi 2 into 3.14 6.28 into 10⁻⁻⁶ Tesla
So this is the magnetic field at the end of the solenoid. तो ये हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. आगे हम लॉरेंट्ज फोर्स करने जा रहे थे, और लॉरेंट्ज फोर्स करने से पहले लेट अस सी कि इफ आई हैव अ चार्ज q moving with a velocity v bar in a magnetic field v bar, what would be the magnetic force? Important. So the magnetic force, if a charge q moves with velocity v bar in a magnetic field v bar, the magnetic force is, भाई ध्यान से, सेम मेन फॉर्मूला, Fm bar is q v bar cross v bar. So Fm bar is q v bar cross v bar. इस फोर्स का मैग्नीट्यूड mod Fm bar is q v b sin theta. And no marks for guessing कि थीटा किसका एंगल है. थीटा इज द एंगल between velocity vector v bar and magnetic field b bar. तो कुछ नोट लिख देते हैं छोटा सा कि if v bar and b bar are parallel or anti-parallel, parallel मतलब थीटा is 0 degree और anti-parallel मतलब theta is 180 degree, then what will be sin 0 or sin 180? 0. Sin 0 is same as sin 180, which is dono 0. Then magnetic force Fm will be 0. Secondly, if particle charge is stationary, that is V is 0, then too magnetic force Fm will be 0. एकदम सीधी बात दिख रही है कि यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो साइन थीटा, दूसरा वेलोसिटी. अगर साइन थीटा किसी भी तरीके से 0 तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0. अगर वेलोसिटी 0 है तो कोई मैटर ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है. सो दिस इज हाउ इट इज. तो अगर अब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड भी है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स इफ चार्ज q is placed in electric field E bar and magnetic field B bar, then the net force is by F bar will be electric force Fe bar plus magnetic force Fm bar. Superposition principle के जरिए ये किया हुआ है. And I think everybody knows. Do we remember F bar is Q E bar and this is Q V bar cross B bar. इन दोनों का मिलन एक फाइनल इक्वेशन के जरिए. So F bar is Q bracket E bar plus V bar cross B bar. Ladies and gentlemen, this is the equation for Lorentz force. Equation 1 is called Lorentz force because Lorentz gave us the equation कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हो और मैग्नेटिक फील्ड में भी हो तो नेट फोर्स उस पे कितना पड़ता है. दिस इज लॉरेंट्ज फोर्स. ओके. एंड अगर कोई चार्ज मूव करता है इस तरह अनडिफ्लेक्टेड दो परपेंडिकुलर क्रॉस्ड फील्ड्स में, देन v इज e by b. याद है वेलोसिटी सिलेक्टर, वो भी एक याद रखने ऐसी चीज है. इसी के जरिए मैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर भी लिख ही देता हूं. इक्वेशंस जो है इस चैप्टर में काफी है. So if a current carrying conductor IL bar, if a current carrying conductor IL bar is kept in a magnetic field B bar, then the force, the magnetic force on that current carrying conductor is given as, again the blue color comes over, F bar is IL bar cross B bar. मस्त क्रॉस प्रोडक्ट है सारे.
and magnitude of this force F is Bill sine theta, and where theta is the angle between IL bar and V bar. Sir, IL bar का direction? भाई IL bar का direction is always along the direction of current. So IL bar मतलब direction of current. करंट के डायरेक्शन और बी बार के बीच का एंगल है ये थीटा. ऑल्सो इंपॉर्टेंट ये भी है, यू नो दिस इज एक्चुअली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. आई टेंड टू कॉल इट FBI रूल. FBI. Middle finger represents current, index finger represents magnetic field, then thumb is going to represent force. So this is Fleming's left hand rule. ये सब किया हुआ है, so I am just brushing over. मैं सिर्फ एक रिवीजन दे रहा हूँ. Where middle finger for fingers of the left hand, middle finger representing current, I, index finger, that is the first finger, representing magnetic field, that is B, then thumb representing the force. So FBI. This is the FBI rule या Fleming's left hand rule. अच्छा, इसी बात से दो वायर्स के बीच का फोर्स भी ले लेते हैं. अगर दो वायर्स हैं, नोट में डाल देता हूं. अगर दो वायर्स हैं, one is carrying current I1, other is carrying current I2, and both are separated by distance D, then the force between them, F, is mu naught I1 I2 L by 2 pi D. So force per unit length ये ज्यादा कारगर सिद्ध होता है. छोटा f is F by L, which is mu naught I1 I2 by 2 pi D. Always remember, if both currents are in the same direction, force will be attractive, and if two currents are in the opposite direction, the force is going to be repulsive. So same direction में current हो तो force attractive, opposite direction में current हो तो force repulsive. यहीं से 1 ampere का definition हमने देखा था कि if the force per unit length between two wires carrying identical currents and separated by a distance of 1 meter is 2 into 10 raised to minus 7 Newton per meter, then the current through both conductors is said to be 1 ampere each. So if I1 and I2 both are equal and 1 ampere, then force per unit length is how much? 2 into 10 raised to minus 7 Newton per meter. This was how the entire thing rolled. अब बात करते हैं what happens if a charged particle is made to enter perpendicularly or not perpendicularly in a magnetic field. So let's do that. I think everyone knows this. Motion, we'll call it motion of a charged particle in a magnetic field. और इसके दो केसेस में देख लूंगा. One, velocity v bar perpendicular to magnetic field b bar. I think there is no need for me to explain the whole thing. I'll just put it in a nutshell. This is my b bar, this like this, and यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है Q जो इस वेलोसिटी से यों जा रहा है. ये v बार है, ये अंदर b बार है, तो इसको फोर्स कैसा एक्सपीरियंस होगा? परपेंडिकुलर. So you can see force and velocity are perpendicular, then the particle will move in circular motion. Not a very good circle as such, but circular motion nonetheless. So the particle, if v bar and b bar are perpendicular, then force F bar is also perpendicular to v bar.
So particle moves on a circular path in uniform circular motion. And कोई भी particle uniform circular motion में घूमे, some agency has to provide centripetal force. इस केस में कौन provide करेगा centripetal force? Magnetic force. So centripetal force is going to be provided by the magnetic force. So simply mv square by r is qvb sin 90. Because v bar and v bar are perpendicular, so angle between them is 90. काट डाला तो मुझे मिलता है रेडियस ऑफ द पाथ r is mv by qb. You can call mv as momentum also, p. Also everybody knows v is r omega. तो यहाँ पे v की जगह r omega डाल दो, r कट जाएगा. So omega angular frequency is how much? Anybody? I can hear answers from the back. QB by m, this angular frequency, and omega is 2 pi nu. So nu frequency is QB by 2 pi m. Well, the magic here is, आप देख सकते हैं कि nu जो है does not depend on velocity or radius. As a result, nu can be said to be nearly constant. And अगर आपको time period चाहिए, time period t is 1 by nu. So this is 2 pi m by qb. ये भी रहता है constant. Okay. अब बात करते हैं कि अगर velocity और magnetic field perpendicular ना हो तो, very interesting. What if velocity and magnetic field are not perpendicular? Okay, let us see that case. Second case, velocity and v bar not perpendicular. भाई 0 या 180 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तो 0 ही होगा. तो इस केस में कैसा होगा? Let me show you. You've seen this before. This is v bar, let us say, and this is your v bar, and ये angle है theta. Then we can divide v bar into two components. One is v parallel and the other is v perpendicular. If you look at v parallel and v bar, they are both parallel. So particle will move in this direction. Let's call it x direction with constant speed, no force. There is no force along the x direction. So particle moves on the x direction. Particle moves along x direction with constant speed, जो v parallel है. And अब मैं v perpendicular और v bar को कंपेयर करूंगा, तो जब भी velocity और magnetic field perpendicular हो, do you agree particle will move in circular motion? So due to v perpendicular and v bar, particle performs UCM. As simple as it looks. भाई यहां पे ध्यान रखना, who will provide the necessary centripetal force? Magnetic force, you will say. पर यहाँ velocity के दो components है, उसमें से किसको लोगे? So m v perpendicular square by r, क्योंकि वो गोल गोल जो घूम रहा है उसमें कौन सी स्पीड कारगर है? v perpendicular is q v perpendicular b sin 90, and this v perpendicular is going to be the king of the ring. So radius r is m v perpendicular by qb. And if you have already seen it, so v parallel is v cos theta, v perpendicular is v sin theta. Theta is angle between v bar and b bar, ladies and gentlemen, याद रहे. So this is m v sin theta by qb. Also कोई हमसे बोलेगा सर टाइम पीरियड भी निकाल के दो. ओके, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, नाम तो सुना होगा. यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी द रिजल्ट. डिस्टेंस कितना होता है? 2 पाई आर. स्पीड कितना? v परपेंडिकुलर, डोंट फॉरगेट. एंड टाइम पीरियड कितना? t. ओके, सो t क्या मिला मुझे?
2 pi r by v perpendicular. भाई r कहाँ है? r is what? m v perpendicular by qb. ओ कैन यू सी? ऊपर नीचे दोनों से v परपेंडिकुलर तो गया, तो तुम्हारा टाइम पीरियड क्या हो गया? 2 पाई m बाय क्यू बी। अर्थात ये वही इक्वेशन है जो लास्ट केस में हमने देखा था। इसका मतलब है वेलोसिटी 90 डिग्री हो या कोई एंगल थीटा पे हो, टाइम पीरियड को कोई फर्क पड़ता नहीं। ऑलराइट, टाइम पीरियड को कोई फर्क पड़ता नहीं, इट रिमेन्स कांस्टेंट, डिपेंड्स ओनली ऑन m q एंड b, तो इट्स कांस्टेंट। अच्छा, ये पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? गोल गोल भी घूमना है और आगे भी बढ़ना है, तो इट विल बी लाइक दिस। सो घूमा आगे बढ़ा, घूमा, इट्स अ हेलिकल पाथ, इट्स अ हेलिक्स, सो पार्टिकल विल मूव along a helical path. The charged particle moves along a helical path and the linear distance traveled in one complete revolution is called pitch. So the linear distance traveled in one complete revolution is called pitch. Let me show that to you. आपने वैसे तो देखा ही है, बट ऐसी है हुई। सो पार्ट कैसा होगा? पहली बात ये ऐसा होगा, ऐसा क्या 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 क्या, और ये जो डिस्टेंस है लेडीज एंड जेंटलमैन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, दिस इज कॉल्ड पिच। एंड सिंस इट इज डिस्टेंस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। भाई स्पीड कौन सी लेंगे? v परपेंडिकुलर या v पैरेलल? v पैरेलल। क्यों सर? क्योंकि हम कौन सी डायरेक्शन का मोशन देख रहे हैं? हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कैसे ले सकते हैं कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? v पैरेलल। एज अ रिजल्ट हमने v पैरेलल लिया। v पैरेलल यू नो इज v cos थीटा and t 2 pi m by qb, so your pitch becomes 2 pi m v cos theta by qb। ये मुझे इतना सुंदर लग रहा है कि मैं सोच रहा हूँ एक आध न्यूमेरिकल कर ही डालूं इसके ऊपर। तो लेट अस सी कौन सा न्यूमेरिकल अवेलेबल है अपने पास इसके लिए। ये मस्त है, sp9 अवेलेबल है इसके लिए, तो sp9 करेंगे, फिर हवन करेंगे, फिर sp15 करेंगे। अच्छा चलो पहले sp9 देख लेते हैं क्या बोलता है। पहले इसको उड़ाना पड़ेगा, एक काम करता हूं, पहले sp9 लिख देता हूं, फिर क्या है बाजू वाला उड़ाऊंगा। sp9 क्या कह रहा है कि a beam of protons with a velocity 4 into 10 raised to 5 meter per second is entering a uniform magnetic field 0.3 Tesla at an angle of 60 degree to the magnetic field. Wow! So ये थीटा 60 लिया, सबसे पहला टेस्ट, इस थीटा दी एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी, सो बीम ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी इतना एंटर्स दिस एट एन एंगल 60 डिग्री टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फाइंड द पिच ऑफ द हेलिक्स एंड मास दिया हुआ है प्रोटॉन का 1.67 into 10 raised to -27 kg। ओके, भले उन्होंने कहा नहीं है, पर हम लगे हाथों रेडियस भी फाइंड कर ही लेंगे। ओके, सो अब इसको उड़ा लेते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि नाउ दिस द ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ विल बी हेलिक्स, मींस इट्स गोइंग टू बी अ हेलिकल पाथ। रेडियस कितना होगा इस हेलिकल पाथ का? रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ इज r mv परपेंडिकुलर बाय qb। v परपेंडिकुलर कितना था?
साइन थीटा, याद ना हो तो याददाश्त थोड़ी तेज कर लो भाई। वेलोसिटी 4 into 10 raised to 5 and sine 60 upon charge 1.6 into 10 raised to minus 19, magnetic field 3 into 10 raised to minus 1। ओके जी, क्या रह जाता है हमारे पास? ये 1.67 और 1.6 को 1.01 कह सकते हैं अगर आपको कहना है तो, इतनी इच्छा हो रही है तो। ये मैंने काट दिया। अच्छा, पहले 10 रेज टू देख लेते हैं। -27 + 5 -22 एंड -19 -10 इज -20। -22 + 20 10 is to -2, ये हिलने लगता है बीच बीच में, पता इंटू 4 एंड sin 60 भाई, sin 60 √3/2 एंड यहाँ नीचे ये 3 को ना भूलना। ओके, सब कुछ आ गया? यस, वी आर गुड। 3 आ गया, sin 60 √3/2 भी आ गया, ये 4 आ गया, बाकी सब 1.01 ले गया। ओके, नीचे 3 2s are 6 एंड ये 4 into 1.01 4.04 into 1.73, the whole into 10 raised to -2. You can take an approximation if you want. This is 2/3 and 2 into 1.7 will be 3.4, 3.5 के आसपास। 3.5/3 करीबन 1.2, करीबन 1.2 into 10 raised to -2 मीटर। अगर हम सही जा रहे हैं तो हमारा आंसर सही है, बराबर है। अच्छा, पिच भी चाहिए, मेन तो हीरो पिच था। पिच, लीनियर डिस्टेंस 2 pi mv cos theta by qv is going to be easy. Mass 1.67 into 10 raised to -27, velocity 4 into 10 raised to -5 इसका 60 and q 1.6 into 10 raised to -90, b is 3 into 10 raised to -1। ओके, 2 pi मैं बाकियों को ले लेता हूं बाजू में, into 4 -27 + 5 -22 and cos 60 is half and नीचे 1.6 into 3 is 4.8, 10 raised to -20। ओके, -22 + 20, पहले 10 raised to उसको हटा देते हैं, साइड में कर लेते हैं। ओके, वी आर गुड। 2 को हटा दो, हो गया, वी आर गुड। एंड pi into 4 is 12.56, 12.56 into 1.67 डिवाइड बाय 4.8। 4.8 आप लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो 5 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.6 3s are 4.8 and 12.56 divided by 3 is 4.1, 4.2 के आसपास। So if you want you can find that out also। 12.56 और नीचे 5 तो करीबन 2.5 के आसपास आ जाएगा। एंड 2.5 into 4.2 के आसपास, बिल्कुल सही श्रीमान, मीटर। ये हो गया आपका पिच। तो ये है फंडा आइडिया का, चेक कर लीजिए। ऑलराइट, अब बात करते हैं साइक्लोट्रॉन की। सो अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू एक्सिलरेट चार्ज्ड पार्टिकल्स टू वेरी हाई स्पीड्स is called a cyclotron and contains of 2 hollow shaped boxes which are called Ds. So these are your 2 hollow shaped boxes। hollow shape नहीं होता है, hollow होते हैं D shaped boxes। ये आपके Ds हैं and थोड़ा टेढ़ा है but whatever। and magnetic field as you can see is coming out of the plane of the Ds। ओके, ये B बार है एंड मैंने इन दोनों के बीच में आई हैव पुट एन AC सोर्स। ऑलराइट, दिस AC सोर्स is used to change the polarity of the Ds। तो you know at time t equal to 0 पार्टिकल बाहर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस कंडीशन is that the frequency of the cyclotron Vc has to be equal to the frequency of the AC source। The most important condition is this। अगर ये मीट नहीं होगा तो पार्टिकल एक्सिलरेट नहीं होगा। तो एट टाइम t equal to 0 ये पार्टिकल बाहर आता है, उसी टाइम पे AC सोर्स चालू होता है। लेट अस से ये D पॉजिटिव हो जाता है, ये D नेगेटिव हो जाता है।
Let us say the particle is positive. Do you agree it will be pulled by this negative d towards itself? तो छोटी सी वेलोसिटी से वो अंदर जाएगा एंड v बार क्रॉस b बार किस तरफ जाएगा? नीचे. तो नीचे जाते हुए आधा चक्कर मारेगा. जैसे ही आधा चक्कर मार के बाहर आएगा पोलैरिटी चेंज क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन है एंड अब ये डी नेगेटिव हो जाएगा. इट विल पुल इट एंड पुल होगा मतलब एक्सीलरेट होगा, फोर्स लगेगा, एक्सीलरेट मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी और वापस चक्कर मारेगा. एंड इस तरह जब भी वो डी से बाहर निकलने लगता है पोलैरिटी चेंज हो जाती है, सामने वाला डी अट्रैक्ट करता है इसको एंड अट्रैक्ट करने से वेलोसिटी बढ़ती है और बड़ी बड़ी वेलोसिटियों के चक्कर लगते हैं. याद रहे एक बात, all the acceleration is happening in the region between the two D's. Inside the D's, the particle is only performing circular motion with constant speed. Whatever speed change is happening in the region between the two D's. तो ये चढ़ता जाएगा. Finally, हमको उसको टारगेट को बॉम्बार्ड करना है, तो we provide a deflecting magnetic field, and as a result, it can successfully bombard the target. So this is the idea. Now there are certain things. If the charged particle performs n revolutions, then total kinetic energy gained. याद रखिए हर आधे रेवोल्यूशन में QV की काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है. तो पूरा एक रेवोल्यूशन कितनी बार उसमें कितने हाफ रेवोल्यूशन होते हैं? तो दिस इज गोइंग टू बी इन ईच revolution is going to gain kinetic energy 2qv, and because there are n revolutions so the kinetic energy is n into 2qv. Now if maximum radius of the orbit is r, d's orbit nahi d's, then equation to yaad hai radius ka r is mv by qb. So how much is velocity v here? Isn't it qbr by m? And thus kinetic energy of the particle which is half mv square, and that is equal to half m into v का square. v क्या है? qbr, तो q square b square r square by m square. तो ये m काटा and what is left? q square b square r square by 2m. wow. तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस v भी निकाला है मैंने एंड काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रेडियस भी मैंने निकाल लिया है. तो दिस इज द आइडिया ऑफ द साइक्लोट्रॉन, जिसको इस्तेमाल करके आई थिंक आई विल डू नंबर. कौन सा नंबर करेंगे? आई थिंक आई विल डू नंबर 1. हमेशा भूल जाता कौन सा नंबर करने का है. राउंड 1 का नंबर 28. यस, राउंड 1 का 28 उड़ा देते हैं पहले. राउंड 1 का 28. It says a deuteron of kinetic energy 50 keV is describing a circular orbit of radius of deuteron 0.5 meter in a plane perpendicular to magnetic field B. The kinetic energy for proton find करना है. सेम रेडियस ऑफ प्रोटॉन 0.5 मीटर है इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ओह गुड. आई थिंक इक्वेशन सेट है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन के मास और चार्ज का नोट लेना. नोट ड्यूट्रॉन मतलब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन is twice mass of proton, whereas
ड्यूट्रॉन में मैंने कहा एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, मतलब चार्ज प्रोटॉन जितना ही है, न्यूट्रॉन में तो कुछ होता नहीं है, तो चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन इज सेम एज चार्ज ऑन प्रोटॉन. नाउ काइनेटिक एनर्जी ड्यूट्रॉन इज q ड्यूट्रॉन स्क्वायर b स्क्वायर r ड्यूट्रॉन स्क्वायर ओवर ट्वाइस मास ड्यूट्रॉन. उसी तरह काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन इज q प्रोटॉन स्क्वायर b स्क्वायर r प्रोटॉन स्क्वायर बाय ट्वाइस मास प्रोटॉन. मुझे लगता है आपने को डिवाइड कर लेना चाहिए. KEP बाय KED. क्या क्या कटेगा, बी स्क्वायर तो कटेगा ही, टू भी कटेगा, तो प्रोटॉन वाला QP बाय QD होल स्क्वायर इंटू RP बाय RD होल स्क्वायर एंड टू कटा, MD ऊपर चढ़ गया, MD बाय MP. भाई QP QD दोनों सेम है तो आओ जो, RD RP दोनों सेम है तो आओ जो, MD ट्वाइस MP. touch. So kinetic energy proton is twice kinetic energy neutron. कितनी थी, 50. So kinetic energy proton is 100 keV. ऐसा ही एक मेरे पास एक और सम है, वही राउंड 1 का, शायद लेट्स सी. आई थिंक नंबर 32 भी वैसा ही है, और 32 ले लेते हैं, वो पिच वाले जैसा ही है. 32 क्या कहता है, प्रोटॉन का मास दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, प्रोटॉन की स्पीड दी हुई है, प्रोटॉन का v 2 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड and at an angle of 60 degree. So 60 degree with the x-axis. मैं थीटा लिखने की अभी वो नहीं करूंगा. Uniform magnetic field of 0.104 Tesla is applied along y-axis. ओ सर जी, ये लोग मेरे को फंसाने के चक्कर में पाथ पूछा है, कैसा होगा, रेडियस और टाइम पीरियड. बात समझ में आई. वेलोसिटी 2 into 10⁶ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, तो ये वेलोसिटी है, ये 60 डिग्री है एक्स एक्सिस के साथ, पर मैग्नेटिक फील्ड तो अलोंग वाई एक्सिस है श्रीमान. इसका मतलब वी बार और बी बार के बीच में 60 नहीं है, तो यहां थीटा इज 90 - 60 बोले तो 30. दिस वाज द मोस्ट क्रूशियल आइडिया. एंड अब तुमको तो पता ही है कि अगर वी बार और बी बार एक एंगल पे हो तो पार्टिकल विल गो अलोंग अ हेलिकल पाथ. सो इट विल बी अ हेलिकल पाथ जिसका रेडियस r इज mv sin थीटा बाय QB. आप चाहते हैं तो मैं रेडियस फाइंड कर देता हूं. 1.67 into 10⁻27, वेलोसिटी 2 into 10⁶. sin 30 is half या 0.5 over charge 1.6 into 10⁻90 and b 0.104, मतलब 1.04 into 10⁻1. 1.67, 1.6 and 1.04 will nearly go away, so you are left with 2 into 0.5, that's 1. Minus 27 plus 6 minus 21, minus 19 minus 1 minus 20, minus 21 plus 20 is 10⁻1 या 0.1 मीटर. एंड टाइम पीरियड मांगा है, टाइम पीरियड t is 2 pi m by QB. आई थिंक यू कैन हैंडल दिस. इसमें तुम्हारा वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी या रेडियस का. सो 2 into 3.14 into 1.67 into 10⁻27 upon 1.6 into 10⁻90 into 1.04 into 10⁻1. Again we are faced with this minus 19 minus 1 minus 20 and minus 27 plus 20 is minus 7. So 2 pi into 10⁻7 second. सॉरी मैंने फाइंड कर दिया. बराबर, आगे बढ़ते हैं. सो इसी तरह चाहिए ना. हेलिक्स का रेडियस 0.1 मीटर एंड टाइम पीरियड 2 pi into 10⁻7. यस. अब उड़ा देते हैं और जो कुछ बचा कुचा है उसको उठा लेते हैं. आई थिंक आई डू SP15 सॉरी.
आप अपने बुक्स को खोल लें और SP15 क्या कहता है, लेट अस सी। SP15, what does it say? SP15 पेज नंबर 875 पे है SP15। एंड क्या कहता है, कहता है कि लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर P carries a current of 50 ampere. So IP is 50 ampere, rigidly fixed. Another fine wire Q is above P. Weight of wire Q का weight is 0.075 न्यूटन पर मीटर, मतलब ये वेट पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है एंड करंट कैरी कर रहा है 25 एम्प। ओके, फाइंड द पोजीशन, पॉजिटिव नहीं, पोजीशन ऑफ वायर Q फ्रॉम P so that wire Q remains suspended due to magnetic repulsion. Also indicate direction of current in Q with respect to P. So suppose ये P है और करंट इस तरफ जा रहा है, ऊपर मैंने लगाया है Q, लेट अस से ये Q है। भाई Q का वेट किस तरफ होगा जी, नीचे। तो Q का वेट को बैलेंस करने के लिए P की वजह से फोर्स कैसा चाहिए, ऊपर। तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू P हैज टू बी अपवर्ड्स। अपवर्ड्स मतलब ये इसको रिपेल करना मांगता है। रिपेल मतलब अगर P में करंट ऐसा है तो Q में करंट ऐसा चाहिए। सो टू बैलेंस, अरे ब्लू में ही लिखना चालू कर दिया, टू बैलेंस weight of Q, the force on Q due to P, मतलब FQP has to be upwards. That is, force has to be repulsive, and force to be repulsive, so current direction will be opposite to the direction of P. बराबर, सो इस तरफ होगा। नाउ सो weight is magnetic force. I'm sure everyone knows weight is magnetic force is mu naught I1 I2L by 2 pi d. ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को d कहते हैं। एंड L को नीचे लिया, ये वेट पर यूनिट लेंथ है, मैंने जैसे कहा था वेट पर लेंथ। सो दिस इज mu naught IP IQ by 2 pi d. This is 0.075, so 75 into 10 raised to minus 3, mu naught 4 pi into 10 raised to minus 7, IP 50, IQ 25 upon 2 pi into d. So 2 pi 2 is 4 pi, मैं d को ऊपर ले लेता हूँ। So 2 into 50 is 100, 100 into 25 into 10 raised to minus 7 over 75 into 10 raised to minus 3, 25 3s are, so ये आ गया 1 by 3 and 2 minus 7 minus 5, minus 5 plus 3 minus 2, so 1 by 3 into 10 raised to minus 2 meter. Check it out. अब करने जा रहा हूं नंबर, देखना पड़ता है, ऐसे ही नहीं कर सकते। हमने 8 किया, 9 किया, 15 किया, राउंड 1 का हमने 28 किया, 25 कर लेते हैं, 25 कर लेते हैं, फिर 32 किया हमने, 38 कर लेते हैं। तो राउंड 1 का 25 क्या कहता है, राउंड 1 का 25 वायर की बात कर रहा है। लार्ज स्ट्रेट सॉलिड मेटालिक वायर ऑफ रेडियस 2 mm, मतलब A is 2 mm, is placed carrying a current uniformly distributed. Magnetic field induction on the wire at a distance of 2 mm. R1 is 2 mm and B1 is B. And what is the magnetic field induction distance? 1 mm. R2 is 1 mm. B2 find करना है। So for a point on the wire या inside the wire, we know magnetic field
at a point on या inside a wire B is mu naught I by 2 pi a square into R. Mu naught I 2 pi a square common है, so B is proportional to R. So do you agree B1 proportional to R1 and B2 proportional to R2? भाई मुझे पता है कि ये ऑन है और इन है तभी ये चल रहा है, अगर ये आउटसाइड होता तो बात बिल्कुल अलग होती माइंड में. सो B2 by B1 is R2 by R1. भाई R2 कितना है 1 mm, ये कितना है 2, सो B2 is B1 by 2. B1 कितना है महाराज B, अरे इजी. ये हो गया राउंड 1 का 25. अब राउंड 1 का ही कौन सा बोले थे, 25 के बाद 28 हो गया, 32 हो गया, 38. बहुत मस्त है 38, कॉन्सेप्चुअल है पूरा. ऐसा कहता है ये स्लोप है, इंक्लाइन प्लेन है और ये वायर है. सर ये कैसा वायर है, भाई करंट या तो अंदर जा रहा होगा या बाहर आ रहा होगा, याद रहे. और बी बार इस तरफ है और ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे जा रहा है. भाई कांस्टेंट स्पीड से नीचे जा रहा होगा तो इसका मतलब इस पे नेट फोर्स कितना है 0. नेट फोर्स 0 का मतलब है वेट बैलेंस हो रहा है सर. ओके तो सबसे पहले देख लेते हैं वेट बीट किधर. आई एम श्योर यू रिमेंबर वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ये है mg cos theta. I hope you still remember, it's a blast from the past. And this is mg sin theta. करंट या तो अंदर जा रहा है, अच्छा अंदर जाता हुआ पकड़ दो, मेरे को पता नहीं है, मैं स्पेकुलेट कर रहा हूं. ये अंदर जा रहा है और ये बी बार है, तो IL बार क्रॉस बी बार किस तरफ आएगा, IL बार क्रॉस बी बार. अच्छा सर हमको कैसे पता, अच्छा तुम बाहर आने वाला पकड़ लो, बाहर आने वाला पकड़ा, सपोज ये IL बार ये बी बार, डू यू अग्री फोर्स इसी तरफ आएगा, तो ये उसको एक्सेलरेशन देगा. बैलेंस कुछ नहीं कर रहा है, बैलेंस करने के लिए IL बार का अंदर होना जरूरी है, बी बार यहाँ IL बार क्रॉस बी बार, तो तुम्हारा वेट बिल किधर आएगा, ये आएगा F इज इक्वल टू बिल. सर 90 साइन थीटा क्यों नहीं, सरकार ये IL बार है बी बार है 90 है ना, बिल साइन 90. अब इसका ये जो कंपोनेंट होगा ना वही बैलेंस करेगा इसको. सो दिस इज बिल कॉस थीटा. सो आई डोंट थिंक अब ज्यादा लिखा पढ़ी की जरूरत है. सो हियर वी सी फॉर बिल टू बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन द करंट इन वायर has to go inside the plane of the paper. करंट यहां जा रहा है. ओके एंड इन इक्विलिब्रियम सब कुछ बराबर है, फ्रिक्शन विक्शन नहीं है. mg sin थीटा इज इक्वल टू बिल cos थीटा. उन्होंने हमसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने को कहा है, हमसे क्या मांग रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. ओके बी को कॉमन लीजिए, बी को सब्जेक्ट बनाइए, mg sin थीटा ओवर IL cos थीटा. भाई साइन बाय कॉस कोई बोला नहीं पर आवाज सब में से, mg tan थीटा अपॉन IL. फर्स्ट क्लास, लेट्स गो. अब कौन सा करने का, तो राउंड 1 हो गया, राउंड 2 का पकड़ते हैं, 2-3 ले लेते हैं राउंड 2 के. राउंड 2 का मैं ले रहा हूं नंबर 55 और 58. बहुत ही सुंदर नंबर 55. अच्छा पहले तो उड़ाना तो पड़ेगा. 55 डायग्राम ही सब कुछ है. वाह
दो आर्क है भाई, दो आर्क है, करंट आई ही जा रहा है दोनों में, ये आर है और ये पूरा 2R है, मतलब इसको पूरा 2R गिनना नहीं, ये इतना 2R है, इतना R है, इतना 2R है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। ओके भाई, लेट मी कॉल दिस आर्क 1 and let me call this arc 2। सबसे पहले ड्यू टू आर्क 1 अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड। एंगल कितना कवर कर रहा है? अगर ये इतना हो जाता तो पूरा 360 होता ना, तो एंगल थीटा इज कितना, 3π/2, रेडियस इज आर एंड फील्ड गोइंग इनसाइड, तो V1 आई थिंक यू रिमेंबर म्यू नॉट आई थीटा बाय 4πr, तो म्यू नॉट आई थीटा कितना, 3π/2 ओवर 4πr। तो क्या क्या कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, 3 म्यू नॉट आई पाई बाय, पाई काट देना, पाई काट दो, चलो ये पाई को काट दो, 8r पर सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन गोइंग इन, एंड दूसरा अब ये आर्क 2, तो ये भी अंदर, क्या बात है, ये पूरा सब अंदर ही जा रहा है। ओके, और इसमें एंगल कितना है भाई, ये एंगल है सिर्फ 90, तो π/2, ये एंड से ये एंड तक कितना सबटेंड कर रहा है वही देखना है। सो थीटा इज π/2 एंड रेडियस r इज r + 2r which is 3r, बराबर। सो B2 अगेन म्यू नॉट आई थीटा बाय 4πr, म्यू नॉट आई बाय 4π, थीटा कितना π/2 एंड रेडियस कितना 3r, पाई कटा, सो म्यू नॉट आई बाय 3 2s are 6 and 6 4s are 24r and going inside, तो नेट डू यू अग्री, दोनों ही अंदर जा रहे हैं, तो B is B1 plus B2 which is 3 mu naught I by 8r plus mu naught I by 24r। अब यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, 3, so this is नीचे 24r, 9 mu naught I plus mu naught I, 10 mu naught I by 24r, एंड कटने के लिए ये mu naught का आ गया, 5 mu naught I by 12r, check, and going इनसाइड बोला या आउटसाइड बोला, आई थिंक अपवर्ड डाउनवर्ड है, सो अपवर्ड मतलब आपकी तरफ आता हुआ, डाउनवर्ड अंदर जाता हूं, गोइंग डाउनवर्ड्स, बढ़िया। एंड अब लास्ट नंबर करने जा रहा हूं, आई थिंक इट्स नंबर 58, राउंड 2 का 58 देख लेते हैं। ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी नू इज 120 मेगाहर्ट्ज and radius of the Ds is 0.5 meter। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है फॉर प्रोटॉन। ओके, तो आसान सी बात हो जाएगी। सबसे पहले वी नो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी नो, isn't it QB by 2πm, ऑलराइट, तो मुझे QB चाहिए यहाँ पे, QB is 2πm नो। सर क्यों, सर QB कहाँ लगाओगे भाई, काइनेटिक एनर्जी वाले में लगा रहा है, काइनेटिक एनर्जी भाई, इक्वेशन तो याद है ना, Q² B² R² by 2m, इसकी जगह मैं QBR द होल स्क्वायर बाय 2m लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो 1/2m को साइड में रखते हैं, और QB क्या आ जाएगा, 2πm नो into r the whole square। Let's open brackets, so 4π² m² nu square r², भाई घबरा मत जाना, बाय m, कट कट, 4 2s क्या बचेगा, 2π² m nu square r²,
ये 2 मैंने काटा है, आपको पता ना 3.14 द होल स्क्वायर इज करीब 110, अच्छा, इंटू नू का स्क्वायर 12 इंटू 10 रेज टू 7 का स्क्वायर, तो 144 इंटू 10 रेज टू 14 एंड रेडियस 0.5, सो 0.5 का 5 इंटू 10 रेज टू -1, 25 इंटू 10 रेज टू -2, देखिए क्या होता है, सो 25 2s are 50, 1.67 इंटू 144 इंटू 50 एंड ये पाई स्क्वायर को मैं 10 ले रहा हूं एंड -19 -2 -21, ये मास है यार, मास -27 होता है कभी कभी, क्या -27 -2 -29 -29 प्लस 15 -29 प्लस 15 -14, ये जूल में है, आंसर मुझे MeV में पूछा है। अच्छा, आई एम श्योर यू नो 1 EV is 1.6 into 10 raised to -19 joule and 1 MeV is 1.6 into 10 raised to -19 into 10 raised to 6 joule, मतलब 1.6 into 10 raised to -13 जूल। तो आओ फिर डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने नहीं किया। ओवर, आप चाहो तो आप इसको गेट रीड कर सकते हो, एंड -14 प्लस 13 इज 10 रेज टू -1, ओके, 144 इंटू 50 का ये 0 निकाल दो, 144 5 और कुछ लोचा नहीं है ना, हमने सही तो किया था, -1.67 इंटू 10 to -27 मास है उसका, and 12 into 10 to 6, 144 into 10 to 14, okay, and radius 0.5, that's 5 into 10 to -1 का whole square, that's -27 -2 -29, -29 plus 14 is -15, -15 plus 10 -14, ये ठीक है, ओके, 25 2s are 50, बराबर जा रहा है, ओके, तो -14 प्लस 13 -1 माइनस माइनस कट गया, 154, कहीं कुछ इधर उधर तो नहीं है, सब कुछ चार्ज वार्ज, QB की जगह 2 पाई m नो बरोबर 2 का स्क्वायर 4, हमने एक मास को उड़ाया है, ओके, नो का स्क्वायर r का स्क्वायर, ये 2 नीचे उड़ा दिया, पाई का स्क्वायर 3 इंटू 3.14, ओके, मुझे क्यों इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। सबसे पहले ये आंसर सही तो है ना, काइनेटिक एनर्जी is half mv square which is half m, और वेलोसिटी qbr by m, तो qbr by m तो q square b square r square by 2m, बरोबर तो है, सही है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, q square b square r square by 2m, ओके, तो हमने qb की जगह 2 पाई m नो लगाया, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू पाई का स्क्वायर m का स्क्वायर नो का स्क्वायर r का स्क्वायर, ओके, एंड नीचे 2m, mn कट गया, ये 2 बचा, 2 इंटू 3.14, 144 5 4s are 20, 2 4s are 5 4s are 20, 22 2 5 6 7 720 MeV जैसा मुझे आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 to -27, ये भी ठीक है, 120 इंटू 10 to 6, ये बरोबर जा रहा है अपना, पर मेरे को यहाँ पे 5.1 MeV दिया हुआ है, क्या गड़बड़ है अपनी, लेट्स सी, भाई अपना आंसर तो सही है, ज्यादा चेक करने के बाद पता चला कि उनकी फ्रीक्वेंसी 120 नहीं 10 मेगाहर्ट्ज है, ये 120 हमने लिया है, उन्होंने एक्चुअली 10 मेगाहर्ट्ज बोला है, तो 10 मेगाहर्ट्ज लेके करोगे, सो केस 2 करके करो कि इफ नू इज 10 मेगाहर्ट्ज देन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इसका आंसर मेरे को चाहिए, मेरा तो आ गया। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।